कवर कर लिया था. Today's the topic is reproduction, the very important topic for the continuity of life and the physiological aspect of reproductive system is very important for you uh, in a clear cut manner. So here I am going to start some pictures, some PPT. और इसके पहले मुझे आपसे स्क्रीन शेयर करनी होगी. तो मैं मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो reproductive system in which today we include male reproductive physiology and the female reproductive physiology. तो बहुत पहले से ही आपको पता है कि फिजियोलॉजी में भी रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में दो कॉन्सेप्ट है आपका, मेल और फीमेल का. और मेल produces haploid gametes and female also produces haploid gamete. They are known as sperm and ovum. And after fusion, they make zygote, and after cleavage, they form different cell stages like morula, then after gastrula, gastrula, and thereafter you know the procedure. But the actual reproductive physiology concerned with the reproductive organ, the main reproductive organ of human body, in a particular reference with human. Today I will discuss the human physiology with particular reference, and I'm going to start some pictures, share with you. Today I'm coming to the topic because there are so maybe large discussion will go on, but not the particular discussion. We only concentrate to the main reproductive organ like testis. The male reproductive organ testis and the female reproductive organ, that is ovary. So testis and ovary, the male primary reproductive organ, the function of testis are spermatogenesis. Spermatogenesis means the secretion of formation of the sperm and the formation of the secretion of the hormone, some testosterone, that is male hormone, and the female reproductive organ in which ovaries are there, and they makes the female reproductive hormone, we can say. तो टेस्टिस में आप देखें कि इट ऑक्यूपाइज द स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी के बाहर होना इसेंशियल है, क्योंकि ये ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेज, जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन यहाँ पे बेबी बॉर्न होता है, उसके पहले वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है. बेबी बॉर्न होने के बाद वो एब्डोमिनल कैविटी से नीचे टेस्टिस मूव करता है और स्क्रोटल सैक में आ जाता है. ये आप लोगों ने पढ़ा है. तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स, प्राइमरी ऑर्गन्स, गोनैड्स और सेक्स ग्लैंड्स. ये सेक्स ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस जर्म सेल्स, manufacture hormones, male gonads, testis, accessory organ, series of ducts that transport the germ cells as well as various exocrine glands.
seminiferous tubules. The main function of the testis is within the seminiferous tubule, because this is very important tubule in which the actual process is going on. About 80% of the adult testis are composed of seminiferous tubules, which are convoluted loops 120 to 300 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. जो एक ट्यूब होती है, वो ट्यूब का जो एपिथेलियम होता है, और उसी एपिथेलियम से सेल्स लगातार डिवाइड होके मिलती रहती हैं, और उसको स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल भी कहते हैं. उससे डिवीजन हुआ, स्पर्मेटोसाइट्स बने, उसके बाद उसी में है सेल्स, सर्टोली सेल्स, जो कि सपोर्टिव सेल्स होती हैं, और स्पर्मेटोसाइट ही स्पर्म को फॉर्म करते हैं. ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आप देख सकते हैं कि इसमें मैच्योर स्पर्मेटोजोआ भी दिखाई दे रहा है और प्रिमिटिव स्पर्मेटोजोआ भी दिखाई दे रहा है, और दोनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, सेल्स ऑफ रेडिक्स, जो कि सिक्रीशन करती हैं हार्मोन का. ये फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंशिएटिंग स्पर्म. Sertoli cells form tight junctions with each other, creating a barrier between the testis and the blood stream. Sertoli cells बहुत ही important cells हैं, और इनको नरिशिंग सेल्स भी कहते हैं. ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं किसको? डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को. लेडिक सेल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, जो कि सिक्रेट करती हैं टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन ही मेल सेक्स हार्मोन होता है, जिससे बॉडी के कैरेक्टर्स, या हम कहें कि जो मेटाबॉलिज्म है रिलेटेड, जो रिप्रोडक्टिव मेटाबॉलिज्म पहले सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, मतलब टेस्टोस्टेरोन से रेगुलेट होता है. टेस्टोस्टेरोन हैज पैराक्राइन इफेक्ट दैट सपोर्ट्स स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है टेस्टिकुलर सर्टोली सेल्स को, और फंक्शंस को रेगुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन का 3 बेसिक फंक्शन है. कौन कौन सा? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को डेवलप करना, स्पर्मेटोजोआ का डेवलपमेंट करना, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी डेवलप करना. दैट इज मेल हार्मोन है. मेल हार्मोन ब्लड में मिला दिया जाता है सीधे टेस्टिस से, वो सीधे एंडोक्राइन फंक्शन के थ्रू, और वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, और जहां उसका रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज टारगेट ऑर्गन होगा, वहां पे वो डेवलप करेगा अपने इफेक्ट्स. दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो कि आपको पता है. डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ 3 फेजेस में हो सकते हैं. पहला माइटोटिक डिवीजन, दूसरा मियोटिक, एंड थर्ड लास्ट वन इज स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस में डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजेला है. स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैच्योर स्पर्म थ्रू द लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म. मतलब उसमें फ्लैजेला का डेवलपमेंट होगा, उसके पहले मियोटिक डिवीजन होगा, दैट इज हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो जाएंगे, उसके 2n से n हो जाएंगे. माइटोटिक डिवीजन में स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होगी, स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, और मैच्योर, वही बाद में मैच्योर होते हैं. ये देखो स्पर्मेटोजोआ हैप्लॉइड, दैट इज 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इसमें आपके रीजन्स हैं, हेड रीजन है, नेक रीजन है, मिडिल पीस है, उसके बाद उसका टेल है. टेल दैट इज फ्लाइजेलम. माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एनर्जी जनरेट करता है, जो स्विम कराने के लिए जरूरी है, स्विमिंग प्रॉपर्टी होती है, और उसको लिक्विड मीडियम प्रोवाइड किया जाता है, और वो उसमें मूव करके ओवा तक पहुंचता है, और जो है उसको फर्टिलाइज करता है. आगे आप देख रहे हैं इसका हेड है, एक्रोसोम है, और एक्रोसोम में एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेशन करते हैं साइटोप्लाज्म का, उसका एग की मेम्ब्रेन का, और उसके अंदर है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस दैट इज हैप्लॉइड न्यूक्लियाई. One full cycle of spermatogenesis required about 64 days. 64 दिन में डेवलप होता है स्पर्म. ये देखो स्पर्मेटोजोआ का
डायग्राम आप देख सकते हैं। मेल सेक्स सेल्स इसको कहा गया। एक इजैकुलेशन में लगभग 200 मिलियन, इजैकुलेशन में एक बार में लगभग 200 मिलियन स्पर्म रिलीज हो सकते हैं। एट द टाइम ऑफ puberty, sperm cells are manufactured continuously in the seminiferous tubule of the testis. puberty के पहले तक उनका डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन जैसे puberty होती है उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और उसका एक ओवल हेड होगा, आपको बताया ही, और उसमें क्रोमोसोम होंगे, उसमें प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे जो लिसिस करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे ओवम की वाल को, और टेल में रेजला है जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड मीडियम में रहता है। मिड पीस ऑफ स्पर्म है कंटेन्स मेनी माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट। एसेसरी ऑर्गन, इसके साथ जो है मेन तो प्राइमरी ऑर्गन है आपका टेस्टिस, लेकिन उसके साथ एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं। द डक्ट्स हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं और वेसाइकल्स हैं जो आपकी पिक्चर में आप देख सकते हैं। सेपरेट द जो है यूरिनरी ब्लैडर आपको दिखाई दे रहा है, पता नहीं। इजैकुलेटरी डक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट इजैकुलेटरी डक्ट्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरेथ्रा। एसेसरी ऑर्गन्स, ये देखिए थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर है। आप टेस्टिस का स्ट्रक्चर उठा के देखें तो आपको इसमें बहुत ढेर सारे लोब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। लोब्यूल्स हैं और लोब्यूल्स जो है आपस में कनेक्टेड हैं और उसके दो रीजन हो गए हैं आपस में चल के। एक है एपिडाइडमिस उसको बोलते हैं, एक हेड ऑफ द एपिडाइडमिस होगा, बॉडी होगी, और एक उसका डिस्टल पार्ट होगा। और वही डिस्टल पास जो पार्ट है वो वास्ट डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। वास्ट डिफरेंस क्या है? वो भी ट्यूब ही है, ट्यूब्यूल ही है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अगर वो क्वाइल्ड हो जाए आपस में तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है ये लोब्यूल का। इतनी हाईली क्वाइल्ड वो ट्यूब्यूल है, उसमें लोब्यूल्स बन जा रहे हैं और वो लोब्यूल्स आपस में फिर ऊपर एपिडाइडमिस वाला हिस्सा बना देना है, जिसको हेड ऑफ एपिडाइडमिस कहेंगे, और उसके बाद उसकी बॉडी होगी और उसका डिस्टल पार्ट होगा। आप स्पर्मेटिक कॉर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें वेन है, आर्टरीज है और नर्व्स के सारे बंच दिखाई दे रहे हैं। मतलब ब्लड की भी सप्लाई है। ब्लड कौन से? वेन्स हैं, आर्टरीज हैं और उसमें नर्वस सप्लाई भी है। ये देखिए सेमिनल वेसाइकिल। सेमिनल वेसाइकिल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सेमिनल वेसाइकिल 3 इंच लंबी पोस्टीरियर होती है यूरिनरी ब्लैडर के। प्रोड्यूस ए थिक येलो एल्कलाइन सिक्रीशन कंपोज्ड ऑफ फ्रक्टोज, सिट्रेट, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फाइब्रिनोजेंस। इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशन निकलता है, फ्लूइड निकलता है, वो बहुत ही न्यूट्रिएंट है फॉर द नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म। स्पर्म वायबल कब होंगे? क्योंकि स्पर्म के पास अपनी कोई एनर्जी नहीं होती। ओवम तो मान सकते हैं फुल ऑफ लेडन होता है, भरा होता है, लेकिन स्पर्म के पास एनर्जी नहीं होती और उनको एनर्जी नरिशमेंट देने के लिए वो सेमिनल फ्लूइड्स सिक्रीट किए जाते हैं। अब आप सेमिनल फ्लूइड देखिए, सेमिनल वेसाइकिल देखिए। ये टेस्टिस से ये है ये सेमिनल वेसाइकिल। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेथ्रा निकला और यहाँ पे आप देखिए ये पीछे ये सेमिनल वेसाइकिल है और प्रोस्टेट ग्लैंड भी है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये रेक्टम है, सेमिनल वेसाइकिल है, इजैकुलेटरी डक्ट है और ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। ये स्क्रोटम, स्क्रोटम के ऊपर ये एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से ये वास्ट डिफरेंस, ये ट्यूबाई
वो फ्लूइड लेकर कहाँ आई पहले? वो लेकर आई सेमिनल वेसाइकल में लेकर आई। ये देखिए सेमिनल वेसाइकल, यही है सेमिनल वेसाइकल। ये नरिशमेंट लेकर आया और फिर वो आगे की ओर बढ़ी। इधर से यूरिन भी आ रहा है और इधर से ये पास हो रहा है, दैट इज स्पर्म, मतलब जो लिक्विड मीडियम में सीमेन जिसको कहेंगे उसमें वो मूव कर रहा है और ये कॉमन पैसेज हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि सुगर्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, प्रोवाइड नरिशमेंट द स्पर्म। ये देखिए, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स react with cervical mucus to make it more penetrable to sperm। ये स्पर्म के पेनिट्रेशन प्रोसेस को और बढ़ा देता है। ये देखिए, इसके बारे में डिस्कशन हो ही गया है। बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड के बारे में डिस्कशन है। इसी को कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये छोटी साइज की ग्लैंड है, ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड, और फ्लोर ऑफ द पेल्विक के नीचे होती है और सिक्रेट म्यूकस, ये म्यूकस सिक्रेट करती है टू लुब्रिकेट यूरेथ्रा और पेनिस। सेक्सुअल स्टिमुलेशन के दौरान इसको लुब्रिकेट करती है। यूरेथ्रा एंड पेनिस उसकी पाइप है और पेनिस जो सीमेन को इजेक्ट करने के लिए जो रिसीविंग सिग्नल्स हैं वो जो है इजेक्शन, प्रॉपर इजेक्शन करने के लिए और प्रॉपर उसको एप्रोप्रिएट जगह पे ले जाने के लिए ये प्रोसेस होती है। यूरेथ्रा एंड पेनिस। Penis made of spongy tissue containing many blood spaces that are relatively empty when the organ is flaccid। बहुत ही इसमें यूनिक फीचर होता है कि जब भी इसको सेक्सुअल अर्ज होता है ह्यूमन में, तो इसमें जो है ब्लड की जो सप्लाई होती है, दैट इज क्यों? क्योंकि ये स्पेशल टाइप के टिश्यूज से मिलकर बना होता है। उसमें ब्लड जो उसमें डिस्टेंट होता है और उसकी जो डायमीटर है वो दैट इज इंक्रीज करेगा और इरेक्शन की प्रोसेस होती है। तो ये स्पेशल इसका, और उसके बाद फोर्सफुल इजेक्शन होता है और इसी को इजैकुलेशन बोलते हैं। यूरेथ्रा के बाहर या इससे की ओर जो है सीमेन मूव करता है। ड्यूरिंग इजैकुलेशन जो ये है सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक वाला सिस्टम है, यहाँ पे स्फिंक्टर्स होते हैं, इसको यहाँ पे रास्ते को क्लोज कर दिया जाता है। ड्यूरिंग इजैकुलेशन यहाँ से कोई यूरिन डिस्चार्ज नहीं हो सकता। उस समय की प्रोसेस को रोक दिया जाता है, यूरिन की प्रोसेस या यूरिन के मूवमेंट को रोक दिया जाता है। फोर्सफुल एक्सपल्शन होता है सीमेन का यूरेथ्रा से, और उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है वहाँ की मसल्स में, और वहाँ की जो सेंसेशन है, जो सेंसेशन के दौरान वो इनवॉलंटरी एक तरह से हम कहें कि रिस्पांस होता है, और फिर इजैकुलेशन प्रोसेस में एक इंटेंस प्लेजर्स की जो सेंसेशन होता है वो रिसीव किया जाता है हमारे ब्रेन में, और वो आपका हिप्पोकैम्पस और जो आपका लिम्बिक सिस्टम है उसके थ्रू उसको रिसीव किया जाता है। ये देखिए इजैकुलेशन। मेल कैन इजैकुलेट 2 to 5 ml of semen containing 50 million to 150 million sperm cell per ml। ये देखिए डायग्राम दिखाई दे रहा है आपका, जो ये है क्या कहते हैं, एग है और उसके साथ स्पर्म है। ओनली वन स्पर्मेटोजोआ कैन फर्टिलाइज एन ओवम, और उसके बाद एक से ही फर्टिलाइजेशन होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी है।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है ओवरीज है, जो प्राइमरी ये हम कहें कि ऑर्गन है, और यहाँ ये पेयर में ओवरी है और सिक्रीट कर रही है, मतलब एक्सक्रीट कर रही है या रिलीज कर रही है ओवा को, और फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसका, जिसमें ये फैलोपियन ट्यूब है और ये यूटेरस है। यूटेरस का एक्सटर्नल, फिर एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है, ये प्रॉपर यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजाइना। ओवरीज, ओवरी की पोजीशन आप इसमें देख रहे हैं। पेयर्ड ओवरी है, इसमें फिम्ब्रियाई है, फिम्ब्रियाई से फैलोपियन ट्यूब रिलीज हुई है, और ओवरी का अटैचमेंट सीधे हम कहें कि यूटेरस के अपर पार्ट से है, जिसको ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। ओवेरियन लिगामेंट से ओवरी कनेक्ट हुई है, और ओवरी में साइकिल चलती रहती है, और इसी के दौरान जो है एग रिलीज होता है, और एग रिलीज होता है, उसको रिसीव किया जाता है फिम्ब्रियाई के थ्रू, और उसको फिर ट्रेवल करा दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, फिर वो जाके आगे इम्प्लांट होता है। तो ovaries small, somewhat flattened oval body, like the testis. Ovaries descend, but only as far as pelvic portion of the abdomen. और इनको ओवा एंड ओवुलेशन, ओवा क्या होता है आपको पता है, एंड ओवुलेशन क्या होता है, कि ओवा को निकालने के लिए या ओवा ओवरी से रिलीज हो जाए, उस पूरे प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन में ये जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपर होता है, और अभी आप उसे देखेंगे। मैच्योरेशन ऑफ ओवा टेक्स प्लेस इन द स्मॉल फ्लूइड फिल्ड क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड ओवेरियन फॉलिकल, और इसी को ग्राफियन फॉलिकल्स भी कहते हैं। एज द फॉलिकल डेवलप, cells in its wall secrete estrogen, that is female hormone, which stimulate growth of the uterine line। ये पूरी जो है यहाँ से ओवरी से सिक्रीशन हुआ, एग को रिसीव किया गया, उसी समय इसी के फॉलिकल्स से सिक्रीशन हुआ एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, और उसने पूरा मैसेज सर्कुलेट किया बॉडी में, और कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। ये देखो, ये ओवम दिखाई दिया, इसकी लेयरिंग दिखाई दे रही है, इसका न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ओवेरियन या इसी को क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम, जब ओवम एक्सपेल कर दिया जाता है तो फॉलिकल जो बचते हैं मास में, यहाँ का जो सॉलिड मास बनता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, और उसका मेन काम है सिक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप देख रहे हो इसमें। जो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल्स थे, कन्वर्ट हो गए प्राइमरी फॉलिकल्स में, प्राइमरी कन्वर्ट हो गए दैट इज सेकेंडरी, और वेसिकुलर फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो गए, और उसके बाद ये यहाँ से रिलीज हो गए, रप्चर्ड हो गए फॉलिकल्स, यानी एग यहाँ से रिलीज हो गया। जो एग यहाँ डेवलप हो रहा था अंदर की ओर, वो एग बाहर निकल गया, और फिर ये रिमेनिंग जो पोर्शन था रप्चर्ड फॉलिकल का, ये कार्पस ल्यूटियम बन गया, जो येलो कलर का दिख रहा है, और ये बाद में एब्जॉर्ब हो जाता है, हम डिसइंटीग्रेट हो जाता है धीरे धीरे। तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसको कार्पस अल्बिकेंस भी कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम, एसेसरी ऑर्गन्स, उसके साथ उसके एसेसरी ऑर्गन्स हैं, ओविडक्ट है, यूरेथ्रा है, देन वेजाइना है, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स हैं, वल्वा है, एंड पेरिनियम है। ये देखिए ओविडक्ट, tube that transport the ova in the female reproductive system, also known as the uterine tube,
और fallopian ट्यूब, उसको यूट्राइन ट्यूब भी कहेंगे, fallopian ट्यूब भी कहेंगे. No direct connection between ovary and this tube. Ova is swept into oviduct by a current into the peritoneal fluid. एग यहाँ से, ओवरी से जब एग रिलीज होता है, जो फिम्ब्रियाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वो उनको रिसीव करता है और आगे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करता है. और इस दौरान यहाँ पे बहुत ढेर सारे सीलिया लगे होते हैं जो कि उनका प्रॉपर मूवमेंट होता है, और पेरिटोनियल फ्लूइड भी होता है वहां पे, और जो कि वो पूरे ट्यूब में उसके साथ मूव करता रहता है. और अपने से ओवर मूव नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि इसके पास कोई फ्लैजिला नहीं है. ये सिर्फ फूड से लेडन जो है एक तरीके का हैप्लॉइड सेल है. एक नॉर्मल उसमें सेंस में 5 डे लगते हैं ओवा को रीच करने में. यूट्रस ओवरी से निकला और यहाँ से यहाँ तक आया, और यहाँ पे जाके उसका फिर फर्टिलाइजेशन तो हम कहें कि ट्यूब में ही हो जाता है, इसमें फैलोपियन ट्यूब में. और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट और जो आगे की सेल स्टेज है वो आके ओवरी यूटेरस की वॉल से जाके वो चिपकता है, और इम्प्लांटेशन प्रोसेस के थ्रू फिर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का. ये यूटेरस क्या है? यूटेरस के डेवलपमेंट के लिए एक ऑर्गन है, प्राइमरी ऑर्गन है, जो कि सारा नरिशमेंट, सारा डेवलपमेंट जो डेवलपिंग जाइगोट का है वो यूटेरस की वॉल से होगा, क्योंकि उससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहेगा. The wall of the uterus includes myometrium और endometrium. Myometrium muscular layer है और endometrium उसकी इनर लाइनिंग है, और उसकी इनर लेयर जो एंडोमेट्रियम है उससे वो एंडोमेट्रियम रप्चर होके निकलता रहता है, और उसी वो ब्लड के साथ उसकी सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होती रहती हैं, और मतलब सेल्स एंडोमेट्रियम की लेयर्स डिस्ट्रॉय होती है. मेंस्ट्रुअल साइकिल में फ्लूइड बनता है. वेजाइना, ये बर्थ कैनाल ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी. सर्विक्स ओपनिंग है यूटेरस की. ये आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड पैसेज ना होके थोड़ा सा दूसरे, मतलब हम कहें कि यूरिनरी पैसेज और ये जो रिप्रोडक्टिव पैसेज है उसमें सेपरेशन है. यूरिनरी ब्लैडर ये देखिए, यूरेथ्रा, और देयर ये वेजाइना, ये कैनाल है, और उसके बाद यूटेरस. ओवरी, ovarian ligament, carpus, body of uterus, fundus और oviduct, fallopian tube, fimbriae, ovum, ये सारे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो. ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है. ये देखिए, आपको यहाँ पे ग्लैंड दिखाई दे रही है. मेरे कर्सर को ध्यान से देखिएगा. जो ये वे है वेजाइना का, और उसके आउटर साइड में आप देखिए ये बीन शेप में ग्रेटर वेस्टिबुलर बर्थोलिन ग्लैंड भी बोलते हैं. ये सिक्रीशन करती है. ये ग्लैंड प्रोवाइड लुब्रिकेशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स. External parts of female reproductive system comprises the vulva, 2 pair of lips, labia, and clitoris, small organ of great sensitivity. Hormonal control of male reproductive function. ये देखिए
इस फिगर में आपको कुछ दिखाई दे रहा है जिसमें जो है हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी से सिक्रीशन निकल रहा है और ये उसके टारगेट ऑर्गन तक वो जा रहा है सिक्रीशन। दैट इज FSH, follicle stimulating हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सारे इसके इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके पहले एक और चीज, ये पिक्चर क्लियर दिख रही है आपको, आप सब लोगों को? ये थोड़ी ब्लर्ड है। आप लोग हैं कि चले गए? सर दिख रहा है, समझ ले रहे हैं उसको। Yes, sir. हाइपोथैलेमस, GNHR, एंटीरियर पिट्यूटरी, FSH, ल्यूटिनाइजिंग सिक्रीशन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीशन, लेडिक सेल, टेस्टोस्टेरोन, सेरोटोनिन सेल्स, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक, ये आप सबको दिखाई दे रहा है? मेरे ख्याल से इस मैकेनिज्म को भी आप समझते होंगे। ये अनुज यस यस सर। दिखाई दे रहा है आपको? जी सर। आप कुछ इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं? कोई नहीं बेटा। हाँ, कोई Sir, नहीं। first is hypothalamus, GHR, GHR. Third is anterior. हाँ, follicle stimulating hormone, then luteinizing hormone, Leydig cells, testosterone secretion. इसको थोड़ा सा हमें ऐसे बता सकते हो? लाइडिंग सेल के बाद, हाँ, लाइडिंग सेल्स एक्टिवेट होंगे, उसके बाद जो सिक्रीशन होगा, फिर उसके बाद नेगेटिव फीडबैक, यानी फिर से हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा कि अब कंट्रोल उस प्रोसेस उसके बाद। हाँ, और ये जो एफएसएच के बाद सर जब होगा, फिर सर्टोलिन सेल्स एक्टिव होंगी यहाँ पर, और उधर एलएच जो होगा वो लाइडिंग सेल को एक्टिवेट करेगा, लेडिक सेल्स को। मतलब FSH और LH कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन एक्टिव कर रहा है? हाइपोथैलेमस। जी वो इनडायरेक्टली सर वो जीएचआर को पहले सिग्नल दे रहा है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कंट्रोल ऑफ द टेस्टिस, वही चीज मैंने बताई कि जो कंट्रोल है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू होता है। न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स हैं, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होती हैं और वो मैसेज भेजती रहती हैं किसे? पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो एक वो होता है पोर्टल वेसल्स होती हैं, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी पोर्टल वेसल्स, कि वो हमेशा मतलब मैसेज भेजती रहती हैं और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH जो है उनकी एक्टिविटी से सिक्रीट होते रहते हैं। FSH जो होते हैं वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं और सर्टोली सेल्स को तो स्टिमुलेट करते ही हैं। सिक्रीशन पैराकाराइन एजेंट हैं, वो स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं। उसी तरह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट्स प्राइमरीली ऑन द लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ये है इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द मेल। आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है काफी ये मेल हार्मोन है और इसका इम्पैक्ट क्या क्या आता है ह्यूमन बॉडी पर। रिक्वायर फॉर सेक्स ड्राइव के लिए जरूरी है, एग्रेसिव बिहेवियर के लिए जरूरी है, एरिथ्रोपोएटिन सिक्रीशन भी कराता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करता है और
बहुत सारे इनहिबिट करता है ल्यूटिनाइन एलएच के सिक्रीशन को, तो इनका बहुत ही इम्पैक्ट है टेस्टोस्टेरोन का भी। टेस्टोस्टेरोन की वजह से कुछ बीमारियां भी देखने को मिल रही हैं, जैसे बाल्डनेस है, आप इस फिगर में देख रहे हो, जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है ट्रिगर विद द टेस्टोस्टेरोन। एग्रेसिवनेस जो बिहेवियर है, ये भी इसकी वजह से ही होता है। मेरे ख्याल से एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपको तो क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। तो थोड़ी देर या 1 मिनट का मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं दूसरे टॉपिक को भी डिस्कस करूंगा आज ही, और आप तब तक आप थोड़ा 1-2 मिनट में रिफ्रेश भी हो लीजिए। ओके सर। ओके सर। ओके सर। हेलो, आ गए सब लोग? जी सर। आप लोग जरा, यस सर, यही है। हाँ ठीक। आप लोग एक बार अगर अपना जरा वीडियो अगर ऑन करें, तो एक बार सबको जरा एक परिचय भी हो जाए सबसे। परिचय क्या, थोड़ा सा आपसे मुखातिब हो जाएं, क्योंकि हम जान जाएं स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। हेलो अनुज, राजलक्ष्मी, मीनाक्षी, यदुवंशी, नीतू, यस सर, यस सर।
पूर्णिमा कुमार, प्रोफेसर किरण पाल, नीतू पांडे, यस सर वेट और श्वेता मौर्य and 7 others. और मैं और हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते नीतू पांडे। जी सर। और लोगों को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। 7 अदर्स हैं तो तो वीडियो ऑफ है बाकियों का। क्यों? अमृता पता नहीं। भाई ऑन तो कर लो एक बार, कम से कम रिसर्च कराना मम्मी होगा तो चाबी देख दीजिए। आप लोग को जानते है रहेंगे। रहने दो है नैना पांडे, ठीक है। अभी जो लोग हैं फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप लोग जा सकते हैं या रह भी सकते हैं, आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे देखिए बस। ये सर ये ज्यादा कंफर्टेबल है। हाँ ठीक है। ओके थैंक यू सर। ओके ओके। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। यस सर। तो पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक सेंसेस के बारे में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ब्रेन के बारे में पढ़ना है भाई। तो हमारा ब्रेन बहुत ही मजेदार है, मजेदार इन द सेंस कि आपको पता है कि एक ही बार में कितने ढेर सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। आपको पता है कि सारा कंट्रोल ब्रेन से ही होता है, सारा जो मैकेनिज्म है कंट्रोलिंग का वो नर्वस सिस्टम के पास है। और इसके पास देखा जाए तो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और निम्पल्स को लगातार भेजता रहता है वो डिस्टेंट ऑर्गन्स में। और इतना बढ़िया जंक्शन पॉइंट है कि अमेजिंग है। ब्रेन को तो कर पाना बहुत अमेजिंग है, बहुत ही अनडिस्कवर्ड एरिया है एक तरीके से। अभी तक हम जितना कवर कर पाए हैं, डिस्कवर कर पाए हैं, उससे भी बियॉन्ड है वो ब्रेन को समझ पाना। तो और उसमें भी जो उसकी बेसिक फंक्शनल यूनिट है दैट इज न्यूरॉन्स, उसको भी समझ पाना, समझ तो लिया ही गया है, उसकी फिजियोलॉजी को समझ लिया गया है, लेकिन जो न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन है और डिफरेंट बॉडी ब्रेन के जो रीजन्स हैं वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं और किस तरह से आउटपुट देते हैं हमें, ये बड़ा अमेजिंग है। क्योंकि एक सीपीयू में और उसको इक्विवेलेंट मान लें सीपीयू और ब्रेन को, तो सीपीयू को तो कमांड दी जाती है और वो उसी कमांड के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट दे देता है। लेकिन ब्रेन क्या है, आप कुछ भी इनपुट करोगे और आउटपुट क्या होगा वो आपके हिसाब से होगा, आप जैसा चाहोगे वैसा इनपुट लोगे। तो ब्रेन बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ईश्वर की बनाई बहुत ही बढ़िया ये है बेसिक नर्व सेल्स के बारे में है। न्यूरॉन्स आर जो फंक्शनल यूनिट है ब्रेन की, दैट इज न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर आप बहुत शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हो। इसमें सोमा होता है, डेंड्राइटिक्स ट्री होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं,
ये देखो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है और ही बहुत हम कहें कि जो फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन, सारे फंक्शंस यहीं से होते हैं, शुरुआत होते हैं। यानी ब्रेन अगर हम आप सोचते भी है ना तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? दैट इज न्यूरॉन जिम्मेदार है। बाकी सारे फंक्शन तो हम करते हैं, वो सारे फंक्शन कौन रेगुलेट कर रहा है? दैट इज न्यूरॉन कर रहा है। हमारा सोचना भी डिपेंड करता है न्यूरॉन पे, हम कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब इलेक्ट्रिक एक्साइटेबल सेल्स हैं। न्यूरॉन्स क्या है? इलेक्ट्रिक एक्साइटेबल सेल्स है और जो भी कुछ हम सोचते हैं या करते हैं, चलते हैं, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के थ्रू काम होता है वहां पे। तो ये प्रोसेस भी करता है और मैसेज को लेता भी है, प्रोसेस भी करता है और आउटपुट भी देता है। ठीक है, तो मेन जो हम कहें जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन कम्युनिकेटेड बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रिक सिनेप्सेस, आपको पता है फंडामेंटल प्रोसेस है जो कि सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं। ये आपने बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ा है और उसमें ये है स्ट्रक्चर आपने बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ा होगा। न्यूरॉन्स हैं, श्वान सेल्स है, माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ जो उसको कवर करती है, एक्सॉन्स है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजता है। ये मैं बता दूं कि जो ब्रेन है उसको फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए आपको प्रॉपर ब्रेन को पढ़ना होगा, प्रॉपर स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ना होगा और उसके बाद उससे रिलेटेड नर्व्स को पढ़ना होगा, दैट इज क्रेनियल नर्व्स एंड जो है स्पाइनल नर्व जिसको बोलते हैं। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व होती हैं। 12 पेयर जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो ज्यादातर आइदर मोटर और सेंसरी नर्व्स, लेकिन जो स्पाइनल नर्व हैं वो ज्यादातर मिक्स्ड नर्व होती हैं, दैट इज वो कैरी कर लाती भी हैं इम्पल्सेस को और इम्पल्सेस को ले भी जाती हैं। दूसरी तरफ ब्रेन की जो नर्व्स हैं 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स वो आइदर मोटर और सेंसरी नर्व्स होती हैं। तो जो केमिकल सिनेप्स आप जो स्लाइड पे देख रहे हो, केमिकल सिनेप्स की फोटो दिखाई गई है, इसमें किस तरह से न्यूरॉन्स जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को रिसीव कर स्टिमुलस को रिसीव करते हैं डेंड्राइट से, फिर उसको सोमा में भेजते हैं, बॉडी में भेजते हैं, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग होती है, नर्व इम्पल्स ट्रैवलिंग जिसको बोलते हैं, ट्रांसमिशन बोलेंगे, वाया एक्सॉन होगी। एक्सॉन के बाद जब वो नर्व इम्पल्स एंड तक आएगी दैट इज टीलोडेंड्रिया तक आएगी, एक्सॉन के टर्मिनल्स तक आएगी, फिर वहां से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस अपने मैसेज को कन्वे करती हैं केमिकल हम कहें कि सिंथेसिस करने के लिए, दैट इज वहां जंक्शन होता है और उसको बोलते हैं केमिकल सिनेप्स। वहां पे एक जंक्शन बन जाता है सिनेप्स। सिनेप्स दो टाइप के हैं, एक तरफ केमिकल सिनेप्स, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स में केमिकल सिक्रीट होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में हम कहें कि कंटिन्यूटी होती है, मतलब वो मैसेज जो ब्रेन से आ रहा है न्यूरॉन्स में ट्रेवल कर रहा है उनके बीच में कोई डिस्कनेक्शन नहीं होता है। केमिकल सिनेप्स में केमिकल स्पेशल केमिकल सिक्रीट होते हैं और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक वो ट्रांसफर किए जाते हैं और लास्ट में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचाए जाते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? बॉडी का जो इफेक्टर ऑर्गन है आपका, जहां पे काम करना है यानी मसल्स होंगी, वहां तक मसल्स का जंक्शन होगा और मैसेज को पहुंचाया जाएगा। ये देखिए इवेंट लीडिंग टू कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में क्या क्या कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स में जो इम्पल्सेस ट्रैवल करती है वो न्यूरॉन मेम्ब्रेन वाया आयन चैनल्स करती है। न्यूरॉन आपने पढ़ा है कि जो न्यूरॉन की जो एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है इट इज एक्सोलेमा, वो बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज होती है और उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ऐसी स्टेट को पोलराइज्ड नर्व्स कहते हैं या पोलराइज स्टेट बोलते हैं।
उसके बाद जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस रिसीव किया जाता है, कोई भी स्टिमुलस अगर हमें मिला, वो चाहे लाइट हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो या कोई केमिकल हो, या सेंसरी ऑर्गन्स, स्टिमुलस को रिसीव किया गया तो सोडियम के चैनल सबसे पहले ओपन होते हैं। सोडियम के चैनल जब ओपन होते हैं तो सोडियम आयन बाहर से अंदर की ओर आता है। अंदर की ओर आएगा तो जो चीजें पहले जैसी थी, दैट इज प्लस चार्ज बाहर था, माइनस चार्ज अंदर था, अब थोड़ा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो जाएगा। दैट इज बाहर की अंदर की तरफ धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू होगा और बाहर की तरफ धीरे धीरे निगेटिव होना शुरू होगा। धीरे क्या, वो चीजें फास्ट होती हैं, बहुत ही मिली फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड में ये सारी फिजियोलॉजी हो जाती है, मतलब बहुत ही कम समय लगता है। तो पोटेशियम चैनल्स जो है फिर ओपन होते हैं, फॉलिंग फेज उसको बोलेंगे। उसी तरह पोटेशियम के चैनल बाहर की ओर जाएंगे, जो मैंने अभी बताया। पोटेशियम जब पहले सोडियम अंदर आया, बाद में पोटेशियम बाहर गया, और इसी की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बाहर आउटसाइड पॉजिटिव था, अंदर नीचे नेगेटिव है, वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी बाहर नेगेटिव हो जाता है और अंदर पॉजिटिव हो जाता है। पोटेशियम आयन अंदर आ गए। अब जो है इसको मेंटेन भी किया जाता है। मेंटेन यानी कि फिर से प्रॉपर जो सोडियम अंदर चले आए हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए, और जो पोटेशियम बाहर चले आए हैं उनको अंदर ले लिया जाए वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ये जो हम न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, अगर हम देखें इसकी जो ये जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो -70 मिलीवोल्ट की है, और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस 55 मिलीवोल्ट का अगर दिया जाता है तब ही इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एक प्रॉपर्टी होती है न्यूरॉन्स की कि उनके अंदर ऑल और नन लॉ चलता है। दैट इज या तो वो फंक्शनल होते हैं या तो फंक्शनल नहीं होते हैं तो पूरी तरह होते हैं, और पूरी तरह फिर वो फंक्शन भी करते हैं। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस में सोडियम के चैनल ओपन हुए और ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस होना शुरू हुआ। जो -70 था वो धीरे धीरे घटने लगा, यानी हम कहें एक तरीके से -7 बढ़ता ही है, -70 से फिर -55, फिर -40, फिर 30, फिर 0 के बाद फिर ये पॉजिटिव में वैल्यू आती है, फिर पीक होता है, फिर वहां से फॉलिंग होती है। यानी यहाँ से यहाँ तक सोडियम के चैनल खुलेंगे, सोडियम अंदर जाएगा, यहाँ से फिर पोटेशियम का चैनल खुलेगा, पोटेशियम बाहर आएगा और फॉलिंग फेज हो जाएगा, मतलब उल्टा चलेगा। एक तरफ राइजिंग फेज होगी, दूसरी तरफ फॉलिंग फेज होगी, और फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक कंडीशन ऐसी भी आती है जिसमें हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, और इनके बीच में इसी समय यहाँ पे जो है आयंस का एक्सचेंज भी कर लिया जाता है। सोडियम और पोटेशियम का जो आउटर एंड इनर साइड में जो अरेंजमेंट है वो वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैनेज भी कर लिया जाता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर लें थोड़ी। यूज्ड टू that are used to relay, amplify and modulate electric signals between neuron and other cells. Neurotransmitters वही केमिकल सिनेप्स से केमिकल सिक्रीट हुए, वो केमिकल सिक्रीट होते हैं और दूसरे न्यूरॉन को एक्टिव करते हैं, या हम कहें न्यूरॉन को ना एक्टिव करके दूसरे जो मस्कुलर ऑर्गन है, या हम कहें नर्व की एंडिंग है, या हम कहें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, उसको स्टिमुलेट करते हैं, और उनका मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर जो मेन है दैट इज एसिटिलकोलिन है। आप बार बार पढ़ते हो एसिटिलकोलिन, जो वॉलेंटरी मूवमेंट के लिए जरूरी है। मस्कुलर एक्टिविटी में एसिटिलकोलिन, यानी नर्व एंडिंग में एसिटिलकोलिन भी सिक्रीट होगा, और न्यूरॉन टू न्यूरॉन जंक्शन में भी एसिटिलकोलिन सिक्रीट होगा। नॉरएपिनेफ्रिन है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, गाबा, ग्लाइसिन, न्यूरोमॉड्यूलेटर्स, एपिनेफ्रिन, ऑक्सीटोसिन एंड ग्लूकागॉन, ये सब क्या है? ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन परफॉर्म करते हैं।
ठीक है। जैसे सेरोटोनिन आपने कई बार पढ़ा होगा, सेरोटोनिन मेमोरी के लिए भी जरूरी है, इमोशंस के लिए भी जरूरी है, वीकफुलनेस के लिए, स्लीप के लिए, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए सेरोटोनिन जरूरी है। तो एक सेरोटोनिन का कितना काम है ब्रेन में, या हम कहें ब्रेन से निकल के बाहर भी, ठीक है। तो आप देखो कि मल्टीपल फंक्शन एक ही सेरोटोनिन परफॉर्म कर रहा है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे किसी एक की प्रॉपर्टी जान लेना कितना आसान है, लेकिन जब वही मॉलिक्यूल डिफरेंट अलग अलग एरिया में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करे तो कितना थोड़ा सा टफ हो जाता है। फिलहाल एक दूसरी बात है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स में एसिटिलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, आपने सब डोपामिन देखिए जो है इमोशंस को भी कंट्रोल करता है, इमोशन सेरोटोनिन भी कंट्रोल कर रहा है। गाबा आया मोटर बिहेवियर के लिए है, ग्लाइसिन है। कहने का मतलब है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है मेरा हमारा, और इसको भी समझ लिया गया, उसमें भी देरी नहीं करी गई, लेकिन अभी भी बहुत कुछ समझ जाना बाकी है, पूरी तरह हम नहीं समझ पाए हैं। इन द नर्वस सिस्टम, एफरेंट नर्व्स, सेंसरी नर्व्स जो मैसेज को लाती हैं कहां तक, ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ही हम नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। दूसरी तरफ इफरेंट नर्व या इसको मोटर नर्व कहते हैं, जो इंपल्सेस को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से बाहर ले जाती हैं, इफेक्टर ऑर्गन तक ले जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, या तो वो मसल्स को जाएंगी या तो वो ग्लैंड्स को जाएंगी। The structure of an afferent neuron contains a single long dendrite and a short axon. आपको पता ही है। और the cell body of the efferent neuron is found in the central nervous system. ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज सीएनएस, सीएनएस दैट इज सीपीयू। कंप्यूटर का जैसे सीपीयू होता है उसी तरह हमारे बॉडी का सीपीयू हमारा सीएनएस है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। उसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उससे निकल के जो भी आए नर्व्स ओरिजिन हुई, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और उसमें से दो है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जहां पे हम अपने विल का इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम हुआ, मतलब हम जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन दूसरी तरफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो हम चाहेंगे वो जरूरी नहीं कि हो। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में वही होगा जो वो चाहेगा। वो कौन? हमारा ब्रेन ही। हमारा ब्रेन ही हमें एक तरफ अलाउ करता है कि भैया एक तरफ अपना काम कर लो, और दूसरी तरफ कहता है नहीं तुम ये काम ना करो, ये हमें ही करने दो। तो ब्रेन कितना कॉम्प्लिकेटेड है। कहने का मतलब ये कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कुछ काम आपको वो नहीं देता कि ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, इसे हमें ही करने दो। सही बात तो यही है। क्यों? क्योंकि अगर छोड़ दिया गया ना हमारे ऊपर कि हमें करना है, तो हम शायद कोई भी काम ना कर पाएंगे। जैसे खाना खा लिया, और खाना तो अपने विल पे खाते हैं हम, लेकिन खाने के बाद जो है उसका डाइजेशन अगर कराना है, तो अगर हम सोचे कि 1 घंटे बाद स्विच ऑन कर दें और 1 घंटे बाद हमारा डाइजेशन शुरू हो जाएगा, तो हम आराम से 2-3 घंटे में डाइजेशन कर लेंगे। और कहीं स्विच ऑन करना भूल गए तो साला पता चला डाइजेशन हुआ नहीं, ग्लूकोज लेवल घट गया और चले गए कोमा में। तो इसी तरह बहुत सारे चीजें, बहुत सारी फंक्शनिंग, जैसे टेम्परेचर रेगुलेशन, जैसे आपका एक्सक्रीशन, जैसे हार्ट बीट, ये सब कुछ कहाँ कर सकते हो तुम अकेले बैठकर। एक तरफ सोचो यार हार्ट बीट को भी रेगुलेट करना, दूसरी तरफ यार किडनी का भी काम कर लेना, थोड़ा किडनी भी करा लो, फंक्शन करा लो, और तीसरी तरफ डाइजेशन भी सही से होता रहे। तो ये कांट पॉसिबल इन अ सिंगल टाइम।
तो सोचो ब्रेन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, एक तरफ आपको आजादी भी दे रहा है और दूसरी तरफ आपके भार को कम भी कर ले रहा है कि भैया थोड़ा ज्यादा काम हो जाएगा तुम्हारे पर, हमें दे दो ये काम। तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपने ये बहुत शुरुआत में पढ़ा होगा, पढ़ते ही हो। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथी दिखाता है आपसे और दूसरी तरफ क्या है, पैरासिम्पैथेटिक। बिल्कुल यही एग्जैक्टली यही हो रहा है। और एंटेरिक नर्वस सिस्टम, एंटेरिक नर्वस सिस्टम मतलब जो आपके एंटरॉन्स हैं, इट इज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहां पे स्पेशल टाइप के नर्वस सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो वहीं पाए जाते हैं। और सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक तो ये है ही है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेरिफेरल में सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक, ठीक है, ऑटोनोमिक, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड एंटेरिक, ये लिखा है। अब आइए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करें थोड़ा सा। ये ब्रेन हो गया आपका और उससे निकली हुई एक पूंछ हो गई जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। दोनों कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है, कहीं कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो सोचो ब्रेन हमारा कहते हैं अखरोट के जैसा है, लेकिन थोड़ा अखरोट के जैसा नहीं और भी उसका लंबा है, वो थोड़ा नीचे रेडिकल्स भी निकले हुए हैं उसके, जैसे जर्मिनेटिंग सीड कह लीजिए, एक सीड जर्मिनेट हो रहा है, इस फिगर में ऐसे दिख रहा है। तो ऊपर का जो हिस्सा है दैट इज सेरिब्रम, सेरिबेलम, बहुत सारे पार्ट उसमें हैं, अभी आगे डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये है आपका, ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए डेवलपमेंट ऑफ द सीएनएस। आपने पढ़ा है कि ब्रेन का डेवलपमेंट न्यूरल प्लेट से हुआ है और न्यूरल प्लेट दैट इज एक्टोडर्म से हुआ है, मेनली कह लें एक्टोडर्मल ओरिजिन है। तो अगर हम डेवलपमेंटल कंडीशन में देखें तो इसमें प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रोम्बेंसेफेलॉन ये होता है। प्रोजेंसेफेलॉन में टीलेंसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन होता है, मेसेंसेफेलॉन प्रॉपर है, फिर रोम्बेंसेफेलॉन में मेटासेफेलॉन, माइनसेफेलॉन एंड फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वो मेनिंजिस से कवर होता है। मेनिंजिस यानी ब्रेन की लेयरिंग्स, जिसमें मेनिंजाइटिस हो जाती है और एक बीमारी होती है वो मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल या आपका वायरल इन्फेक्शन हो जाए मेनिंजिस में और प्रेशर क्रिएट हो ब्रेन पे, तो हमारी बॉडी या हम अनयूजुअल बिहेवियर हो जाता है, उस बीमारी को कहते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस, स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है। ब्रेन में ब्रेन स्टेम है, प्रोजेंसेफेलॉन है और सारे रीजन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देखो में रोम्बेंसेफेलॉन पॉन्स को बनाता है, सेरिबेलम को बनाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा को बनाता है, मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन कहते हैं इसको, सेरिब्रम पेडेंकल को बनाता है, डायनसेफेलॉन सब थैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या एपिथैलेमस, थैलेमस है, इन सबको बनाता है। उसके बाद टीलेंसेफेलॉन जो हिप्पोकैम्पस और सेरिब्रम जिसको कहते हैं उसको बनाता है। ये देखिए ब्रेन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपकी पीनियल ग्लैंड है, ये पीछे की तरफ सेरिब्रम है, आगे की ओर ये सेरिबेलम है और ये सेरिब्रम है, यहाँ पे पॉन्स है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, गायरी एंड सल्की दो स्टेजेस होती हैं। ये सल्कस है जो डीप डिप्रेशंस है और ऊपर ये गायरस है, मतलब ये वेबी स्ट्रक्चर होता है जैसे अखरोट का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे ये देखिए ये कैविटी है, ये अंदर ये यहाँ पे जो है ये सेरिबेलम है, ये कॉर्टेक्स है, फिर यहीं पे हाइपोथैलेमस, फिर ये यहाँ से पिट्यूटरी, ये पॉन्स। तो रोम्बेंसेफेलॉन की बात हो रही है यहाँ पे,
pons cerebellum and the medulla. ये spherical structure that is pons and cerebellum, ये structure है आपका, ठीक है। cerebellum को ही little brain कहते हैं। cerebellum important है, ये जो है हमारे इक्विलिब्रियम के लिए, हमारे पोस्चर, मोटर लर्निंग एक्टिविटी के लिए है सेरिबेलम। पॉन्स है, पॉन्स एक ऐसा एरिया है जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है किसके बीच में, सेरिबेलम और सेरिब्रम के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करता है। और फिर मेडुला ऑब्लंगेटा के कार्य आपने बहुत पहले से पढ़े हैं, दैट इज ऑटोनॉमिक है, बहुत सारा काम करता है, रेस्पिरेशन का, ब्लड प्रेशर का और हार्ट रेट का, वॉमिटिंग का सेंटर सारा यही होता है। mesencephalon, मिड ब्रेन, सेरिब्रल पेडंकल, डायनसेफेलॉन, ये एरिया इंपॉर्टेंट है जिससे हाइपोथैलेमस ओरिजिन हो रहा है। थैलेमस, थैलेमस से ओरिजिन हुआ, दैट इज हाइपोथैलेमस और सबथैलेमस, ये थैलेमस वाला एरिया है। और इपीथैलेमस से डेवलपमेंट होती है, दैट इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड अभी आप आगे पढ़ेंगे, ये पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी बोलते हैं और इसका रिलेशन है ये बिहेवियरल, हम कहें या बायोलॉजिकल क्लॉक में इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इससे बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं। हिप्पोकैम्पस, ये देखिए हिप्पोकैम्पस मैंने डिस्कशन शायद किया था या नहीं किया था मुझे नहीं याद है, लेकिन ये देखिए इसमें प्ले अ पार्ट इन मेमोरी एंड स्पेशियल नेविगेशन। हिप्पोकैम्पस, ये हम कहें लिम्बिक सिस्टम, आपके ब्रेन में एक लिम्बिक सिस्टम होता है जो कि आपके इमोशंस को और फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। और ये हम कहें कि ये हिस्सा किसका है, दैट इज टीलेंसेफ्रॉन का है, या हम कहें उसमें सेरिब्रम है। सेरिब्रम में हिप्पोकैम्पस और नियोकॉर्टेक्स एरिया को मिलाकर ये बना हुआ है। और एल्जाइमर डिजीज जो होती है मेनली वो हिप्पोकैम्पस एरिया से रिलेटेड है, और उसमें एल्जाइमर में प्रॉब्लम होती है, दैट इज मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाएगी, डिसओरिएंटेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, और हिप्पोकैम्पस जो एरिया है वो मतलब कि डैमेज हो सकता है। और ऑक्सीजन स्टारवेशन या हम कहें एनसेफेलाइटिस की वजह से ये हो सकता है, और जिससे हम अपनी मेमोरी को लॉस कर सकते हैं। तो हिप्पोकैम्पस एरिया जो है इंपॉर्टेंट है मेमोरी के लिए। ये फ्रंट लोब्स, इसके डिफरेंट लोब्स दिखाए गए हैं, दैट इज फ्रंटल लोब जो फ्रंट के सामने, फ्रंट मतलब सामने है, हेड है, फ्रंट मतलब हेड के सामने है, दैट इज पैराइटल ऊपर की ओर है, ऑक्सीपिटल दैट इज पीछे की ओर है, एंड टेम्पोरल दैट इज ए साइड लेटरल साइड में है। तो पैराइटल लोब है, फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लोब है। ये यूजुअली किसके लोब्स हैं, सेरिब्रम के लोब्स हैं। और जो सेरिब्रम होता है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, और उनमें फ्रंटल लोब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है, जजमेंट, इट कंट्रोल्स जजमेंट। हमने क्या जजमेंट लिया है इस पे जो है कंसंट्रेट होता है। हमारी लैंग्वेज, हमारी मेमोरी, हमारा मोटर फंक्शन, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेशलाइजेशन, ये सारी चीजें कहां से गवर्न हो रही हैं, दैट इज फ्रंटल लोब से। तो ये हम कहें कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आपके ब्रेन का। देखिए
ये प्लानिंग के लिए भी असिस्ट करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है, कंट्रोल करता है एंड एग्जीक्यूटिंग बिहेवियर के लिए भी है। फिर वही कॉम्प्लेक्सिटी, इतना कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। पैराइटल लोब, पैराइटल लोब का जो इंपॉर्टेंस है वो सेंसरी है, इंटीग्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है वेरियस बॉडी पार्ट से, जितने भी सेंसेशंस हैं वो इसको दे दिए गए हैं कि भैया तुम ये वाला काम करो जो है, और हम जो है आगे जजमेंट लेंगे। सारा जो स्मार्ट बिहेवियर है या स्मार्ट कंट्रोलिंग है, या हम कहें कि बहुत ऊपर लेवल की जो थिंकिंग है शुरुआती वाली, वो फ्रंटल लोब करता है। और उसके बाद पैराइटल लोब जो है मैंने बताया ही अभी कि वो इंटीग्रेशन का काम करता है। कौन से? सेंसरी इंफॉर्मेशन के इंटीग्रेशन का काम करता है। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब साइड में है, मतलब आपके जो है ईयर के साइड में है, तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग करेगा, ऑडिटरी कॉर्टेक्स के पास में होता है। तो ये भी मेमोरी से भी रिलेटेड है, तो मेमोरी भी करता है और हम कहें कि सेंसरी फंक्शन भी कर रहा है। दूसरी तरफ ये टैकीकार्डिया, रैपिड हार्ट बीट, इंक्रीज रेस्पिरेशन एंड स्ट्रेस हार्मोन, ये इनके भी काम करता है। ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब का काम है विजुअल प्रोसेसिंग करना। सेंटर ऑफ द ब्रेन contain most of the anatomical region of the visual. तो पता है कुछ हमारी हेलो हेलो हाँ सर, your voice is not clear, sir. हेलो Sir, voice is not clear. Your speaker is not clear. क्लियर? आज Bad network. आ रही है आवाज? ये सब आ रही है। तो जो बेटा फ्रंट ऑक्सीपिटल लोब होता है, ऑक्सीपिटल लोब जो कुछ भी हम देखते हैं अपनी आईज से, वो मैसेज ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है और ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में जाता है, और वहां पे उसकी इमेजेस को रीड किया जाता है। जो इमेज आई में बनती है वो फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के थ्रू हमारे उस एरिया में पहुंचाई जाती है और फिर से उसको डिकोड किया जाता है और एक प्रॉपर इमेज बनती है। व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, क्या होता है व्हाइट एंड ग्रे मैटर, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स का नाम सुना होगा। तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, जिनमें माइलिन शीथ होती है, उनका कलर व्हाइट होता है, और जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं या पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन विच आर नॉट कवर्ड विद माइलिन शीथ इज इन ग्रे इन कलर, वो ग्रे कलर के होते हैं। तो एक ही न्यूरॉन के दो हिस्से हो गए, एक जो माइलिन शीथ से कवर हुए हैं दैट इज व्हाइट इन कलर, और दूसरे न्यूरॉन के हिस्से जो कि माइलिन शीथ से कवर्ड नहीं है वो ग्रे टाइप के हैं। तो इनकी वजह से व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर बन गया। तो ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर हमारे ब्रेन के कुछ स्पेशल एरियाज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन के स्पेशल हम कहें कि स्ट्रक्चर है, स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं कह सकते, वो न्यूरॉन का ही फॉर्म है या न्यूरॉन का अपीयरेंस है। न्यूरॉन के पार्ट्स कुछ अपीयर होते हैं व्हाइट कलर के, और उसी न्यूरॉन के दूसरे पार्ट ग्रे कलर के हो सकते हैं। या हम ये कहें कि पूरा का पूरा न्यूरॉन जो है, मैक्सिमम पार्ट उसका
माइलिन शीट से कवर है तो दैट इज माइलिनेटेड. दैट कलर किससे होगा? व्हाइट कलर का होगा. तो व्हाइट एंड ग्रे मैटर इज नथिंग बट दे आर द स्पेशल regions of the we can say neurons. It is composed of myelinated nerve cell process or axon which connect various gray matters area of the brain to each other and carry nerve impulses between neurons. ये देखिए, gray matter is a major component of the CNS consisting of nerve cell bodies. मतलब नर्व सेल की जो बॉडी होगी वो, और कैपिलरीज जो होंगे वो शॉर्ट नर्व सेल्स के एक्सटेंशंस होंगे, वो सब क्या है? दैट इज ग्रे मैटर. ग्रे मैटर इज कंपोज्ड ऑफ अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स एज अपोज्ड टू व्हाइट मैटर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स. फिर वही बात आ गई, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट. स्पाइनल कॉर्ड के कौन कौन से सेगमेंट्स हैं और उनसे कौन कौन से नर्व्स ओरिजिन हुई हैं. देयर आर 31 स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट और उससे निकलती हैं 31 पेयर स्पाइनल नर्व. 8 होंगी क्रेनियल सेगमेंट्स में, 12 होंगी थोरैसिक सेगमेंट में, 5 होंगी लंबर सेगमेंट में और 5 ही होगी सैक्रल सेगमेंट में और 1 होगी कॉक्सिजियल सेगमेंट. तो कुल मिला के हो गई कितनी? 31 पेयर. ये दिखाई दे रहा है. थोरैसिक दैट इज थोरैक्स हिस्से से, सर्वाइकल दैट इज नेक हिस्से से, लंबर दैट इज लंबर रीजन से, सैक्रल दैट इज सैक्रल रीजन से, लास्ट पार्ट से. और उसका नाम है TH1, TH2, TH3, TH4 से लेकर TH12. और इसी तरह सर्वाइकल है C2, C3 से लेकर C8 तक, लंबर है L1 से L5 तक, सैक्रल है S1 से S5 तक. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब आउटसाइड ऑफ द CNS. CNS के बाहर, CNS के बाहर जो कुछ भी है वो PNS है. यानी ब्रेन तो कवर्ड है आपका किससे? मेनिंजिस से. मेनिंजिस से तो स्पाइनल कॉर्ड भी कवर रहती है. और ब्रेन कवर है आपका फ्लूइड से, उसके बाद मेनिंजिस से, उसके बाद बोन से, क्रेनियम से, और जबकि PNS कवर नहीं होता है. PNS किसी ऐसी सरफेस से कवर नहीं होता है. और क्यों? क्योंकि उसमें नर्व्स होती हैं. और ये आ गई बात क्रेनियल नर्व्स की. क्रेनियल नर्व्स 12 जोड़ी नर्व्स जो कि हैं, और ऑल्फैक्टरी से शुरू हुए, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ये अपने अपने हिस्से की विशेषताओं को बता रहे हैं. ऑल्फैक्टरी है तो ऑल्फैक्शन, ऑप्टिक है तो ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर है तो मोटर से. इसी तरह ट्रॉक्लियर है, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल है, फेशियल से एब्ड्यूसेंस. ये मोटर फाइबर हैं जो कि आइज की मूवमेंट के लिए जरूरी है. ट्राइजेमिनल ये भी लैक्रिमल ग्लैंड को एक्टिव करती है, टीथ, चीक्स, अपर लिप्स को ये करती है. उसी तरह ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्शन करेगी. ऑप्टिक, ऑप्टिक से रिलेटेड है, मोटर सॉरी सेंसरी है. ये देखिए उसके डिफरेंट हिस्से दिखाए गए हैं, वैगस के, एसेसरी के और हाइपोग्लॉसल के. वैगस नर्व, मिक्स्ड नर्व, इसोफेगस, ट्रैकिया, फेरिंग्स, पैलेट, एक्सटर्नल ईयर, इन सबको जो है ये कवर कर रही है. एसेसरी है, फिर हाइपोग्लॉसल है, मिक्स्ड नर्व है, ये सब.
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर से आते हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. Autonomic nervous system is the part of peripheral nervous system that control homeostasis. होम्योस्टैसिस का सेंस बहुत ही ह्यूज है. ह्यूज इन द सेंस कि होम्योस्टैसिस एक छोटा सा शब्द तो लगता है, लेकिन बहुत सारे फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है. एक ही साथ में सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, मास्टर कंट्रोल जिसको बोलते हैं. कार्डियोवैस्कुलर भी कंट्रोल है, डाइजेस्टिव भी कंट्रोल है, रेस्पिरेटरी कंट्रोल है, सलाइवेशन है, बहुत सारी चीजें, प्यूपिल का डायमीटर है, मिक्टुरेशन है. ये सब कौन का मैंने अभी चर्चा करी इस पे कि आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही इसको कंट्रोल करता है. अगर आपको ये चार्ज दे दिया जाएगा तो आप इसका गड़बड़ कर दोगे. जो काम हो रहा है ना प्रॉपर, वो भी गड़बड़ हो जाएगा. इसलिए ऑटोनॉमिक है ये इसको बचा के रख लिया. सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं. एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत कार्य करना, लेकिन विपरीत नहीं है एक तरीके से, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे इसको. आपने पढ़ा है कि एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक उसको स्टिमुलेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किसी भी फिजियोलॉजी को डीएक्टिवेट या एक्सीलरेट या इनएक्टिव करता है. इसी तरह ऑपोजिट मतलब ऑपोजिशन बिहेवियर होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का. लेकिन यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री शब्द इसलिए कहा क्योंकि दोनों सिस्टम, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, किसी एक फिजियोलॉजी को स्मार्टली कंट्रोल करते हैं. एक दूसरे के टोटल एंटागोनिस्टिक नहीं है, जबकि complementary. The parasympathetic system conserves energy as it shows the heart rate increases intestinal and gland activity and relaxes sphincter muscles in the gastrointestinal tracts. उसी तरह से उसका उल्टा काम किया किसने? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने. इसका उल्टा है सिंपैथेटिक, जो डिवीजन है एक्सीलरेटर का है, और सिंपैथेटिक डिवीजन टिपिकली फंक्शन इन एक्शंस रिक्वायरिंग क्विक रिस्पॉन्सेस. क्विक रिस्पॉन्स जहां होगा वहां पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा. द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन फंक्शंस विद एक्शन दैट डू नॉट रिक्वायर इमीडिएट रिएक्शन, यानी जहां भी तुरंत एक्शन नहीं लेना है, आराम से एक्शन लेना है, वहां पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा. और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और होम्योस्टैसिस करते हैं. उसी तरह एंटरिक नर्वस सिस्टम की बात आई, जो मैंने पहले ही बताया था, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के पास जो नर्वस सिस्टम है दैट इज एंटरिक नर्वस सिस्टम, और उसमें बहुत बिलियन न्यूरॉन्स हैं, क्योंकि दिखाया गया है, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका दिखाया गया है और इसके आसपास है. ये भी जो है ये एक पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करते हैं, चर्निंग को, इंटेस्टिनल कंटेंट को रेगुलेट करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को कैसे कौन सिक्रीशन होगा, किस तरह से फंक्शन कराया जाएगा, इन सब को रेगुलेट करते हैं. तो मेरे ख्याल से इतना काफी है आज के लिए. जी सर. आप लोगों की दूसरी जगह क्लास भी होगी, क्यों कि अब क्लास नहीं है आपकी? नहीं सर, अब नहीं है कहीं. नो सर, अब नहीं है. सर अब कोई क्लास नहीं है सर. अब नहीं है सर कोई क्लास. आपकी क्लासेस कितने बजे से शुरू हो जाती हैं? सर सर 2 बजे से स्टार्ट हो जाती है. यस सर. तो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है? यस सर. टॉपिक यस सर. टॉपिक तो सब लोग पहले से ही पढ़े हो, और बहुत डीप डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी सर आप नोट्स सर प्रोवाइड करा दीजिएगा सर, तो और आसान हो जाएगा थोड़ा सा. ठीक है, आई विल ट्राई.
ओके हम लोग सर। का नाश्ता भी आ गया। अरे आप चुप रहिए। चलो ठीक है, है। सबको पता है, नाश्ता करिए, खाइए पीजिए, चाय पीजिए, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं भी जा रहा हूँ। बाय बाय। अरे ओके अगर सर, कुछ नमस्ते। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ओके सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर।